خدا ان کا شکر ہے، خدا نے ہمیں اس کلیسیا میں رکھا ہے اور اس ملک میں رکھا ہے، اور ہم خدا ان کے نام کو ہمیشہ سر بلند کرتے رہیں گے۔ ہاللیلویا۔ خدا ان کے وعدے ہمیشہ اس کے لوگوں کے ساتھ ہیں، اور وہ سنتا بھی ہے اور وہ بولتا بھی ہے۔ ہم آج کل جو کلام سیکھ رہے ہیں سیریز ایکٹیو یور بلیسنگ، پچھلے سنڈے کو جو میسج تھا ایکٹیو یور بلیسنگ بائی کووننٹ، خدا ان کے عہد کو یاد دلائیں کہ خداوند اپنے لوگوں کے ساتھ ہے، لیکن ہمیں بھی یاد رکھنا ہے۔ وہ کہتا ہے جو میرے کلام کو سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے، ہمیں عمل کرنا ہے، اور یہ ساری اسٹریٹجی یا یہ ساری کیمسٹری خداوند نے عیاں کی ہے اپنے کلام کے وسیلہ سے، جو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے سنڈے کے سنڈے سنتے ہیں، اسے اپنے خاندانوں میں، اپنی زندگیوں میں لیں اور بھاری برکت کو حاصل کریں۔ آپ کی زوردار تالیوں میں بلاؤں گا پاسٹر عمران مچول کو آج کے کلام کے لیے۔ زوردار تالیوں۔ Praise the Lord. Praise the Lord. یقیناً جب ہم خدا ہم سے مانگتے ہیں ہمارا خدا ہمیں دیتا ہے، اور وہ عجیب طریقے سے ہمیں چھوتا ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر کافی صورتحال ہماری بیٹیوں کے سبب سے گمبھیر سی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ میڈیا تیز ہے۔ میری یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے خاندانوں کو کلیسیوں کے ساتھ وابستہ رکھیں، کلیسیوں کے ساتھ مضبوط رکھیں۔ یہ زیادہ ضروری ہے۔ جب ہم جیسے لاسٹ ٹائم میں بتا رہا تھا کہ ہم جب عہد سے دستبردار ہو جاتے ہیں تو پھر ہماری زندگی سے پیس ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے اپنے ملک کی دعا بھی کرنی ہے کہ یہ بچا رہے اور محفوظ رہے۔ میں یہ کل پچھلے دفعہ بتا بھی رہا تھا کہ اگر ایسی صورتحال ملکوں میں ہو تو وہ تباہ برباد ہو جاتے ہیں، لیکن براہ راست اثر ہماری زندگیوں کے اوپر بھی اس کا ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم ان کی دعا گو ہیں کہ خدا اس کے اوپر رحم اور فضل کرے۔ آمین۔ اس بدھ میں پاسٹر کیتھرین کے چچا خدا میں سو کے ہمارے نانا، خدا نے ان کو پیری بخشی، ضعیف، وہ بڑے ضعیف تھے، عمر رسیدہ تھے، اپنی پوری عمر کر کے وہ خدا ان کے پاس پہنچے۔ یہ خدا ان کا شکر، اس کے نام کی تعریف، اس کی تمجید ہو کہ وہ بزرگوں کو خاندانوں میں رکھتا ہے اور اپنے وقت کے مطابق اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ خدا کا شکر ہو، کلیسیا کے اندر بھی خدا نے ہمیں بزرگ دیے ہیں۔ خدا ان کی برکت کلیسیا میں ان کے وسیلے سے ہوتی ہے۔ آمین۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب یہ چرچ ختم ہوتا ہے تو آپ بزرگوں کے ساتھ ملا کریں، ٹھیک ہے، اور وہ بلیسڈ ہوتے ہیں۔ آمین۔ کل ایلڈر صاحب کی برتھ ڈے تھی، نہ ان کو پتا تھا نہ ہمیں پتا تھا، لیکن ہم کلیسیا میں ان کو ہیپی برتھ ڈے کہتے ہیں۔ پاسٹر کیتھرین نے ان کو یاد دلایا کہ آج ان کی برتھ ڈے ہے، اور اسی ہفتہ میں ایتھن پرویز کی بھی برتھ ڈے تھی، ہم وہاں اس میں شریک تھے۔ خدا اس بچے کو برکت دے، قوت دے، ذوق دے۔ اس ہفتے میں کسی اور کی بھی برتھ ڈے تھی؟ کب؟ آج۔ ارے واہ، زینب کے لیے ہم اپنے بڑے سے کہتے ہیں، وہ آسٹریلیا میں بے شک ہے،
لیکن ہماری دعا اس بچے کے ساتھ ہو، خدا برکت دے۔ ہمارے بھائی وہ عدنان ہے، وہ براہ راست ہمارے ساتھ تعلق میں رہتا ہے، وہ ساری چرچ کی ایکٹیویٹیز کو دیکھتا ہے اور دعا بھی کرتا ہے۔ 5 نومبر کو اس کی تھی، خدا اسے بھی برکت دے اور سلامتی بخشے۔ بچے، بزرگ، بیٹے، بیٹیاں، بھائی، بہنیں، خدا ان سب کو سلامتی بخشے، آمین۔ اسی اس کا میں آخری سرمن سنانے جا رہا ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ آپ کی زندگی میں خداوند کی برکت ایکٹیویٹ ہو رہی ہے، ہو چکی ہے، ہو رہی ہے، اور یقین جانیے یہ ہو جائے گی، آمین۔ جب آپ ان تمام باتوں کو اپنی زندگی میں یاد رکھیں گے، کیسے برکت کیسے متحرک ہوتی ہے، بائی آسکنگ، یعنی مانگنے سے، مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، بائی اوبیڈینس، برکت کیسے جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوتی ہے، فرما برداری سے ایکٹیویٹ ہوتی ہے، تابع داری سے ایکٹیویٹ ہوتی ہے۔ پھر یہ کیسے ہوتی ہے، بائی گیونگ۔ اس پر میں ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ خدا وہ سب سے بڑا گیور ہے، اور اس کی برکت ختم نہیں ہوتی، اس کی زندگی ختم نہیں ہوتی، اس کی وہ ابدی زندگی رکھتا ہے۔ جو گیور ہے، جو دینے والا ہے، وہ اپنی نہ صرف اس کی برکت ختم ہوتی ہے، بلکہ وہ دوسروں کو اس سے اور اسودہ کرتا ہے۔ بائی اتھارٹی پرسن، میں نے یہ بتایا کہ آپ اپنی زندگیوں میں اتھارٹی پرسنس کو رکھیں، اتھارٹی فگرز کو اپنے ساتھ رکھیں۔ خداوند نے اگر ہیڈز دیے ہیں اس دنیا کے اندر تو یہ خاص مقصد کے لیے دیے ہیں، اور وہ کیا ہے، بچوں کو پیرنٹس دیے ہیں، کلیسیوں کے اندر پاسٹرز ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسری خدمتیں ہیں، ملکوں کے اندر جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اتھارٹیز ہیں، ٹھیک ہے، ہر جگہ کے اوپر اتھارٹی ہے، فیکٹریز کے اندر، اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، اداروں کے اندر اس نے اتھارٹیز کو قائم کیا ہے۔ ایڈمنسٹریشن یہ ہے، یہ اس دنیا کے اندر پائی جاتی ہے، اور سب سے بڑا ایڈمنسٹریٹر، سب سے بڑی اتھارٹی ہمارا خدا ہے، آمین۔ اس بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو یہ جان کے کرو کہ خداوند کے لیے کرتے ہو۔ تو اتھارٹی کا، جب آپ کی زندگی میں اتھارٹی ہوگی، آپ کی برکت ایکٹیویٹ ہوگی۔ میں اس سینس میں بتا رہا ہوں، اگر آپ اتھارٹی کو جو ہے وہ اس سے دستبردار ہوتی ہیں، اس کو ریجیکٹ کرتی ہیں، آپ کی برکت رک جائے گی۔ سمپل سی ایک بات ہے، جیسے آپ پیرنٹس ہیں یا بچے، اور ان کے ساتھ پیرنٹس کا اور بچوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور اگر بچے اس اتھارٹی کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو بائبل میں لکھا ہے کہ اگر تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرے گا تو کیا ہوگا، تیری مرتراز ہوگی۔ جس کا مطلب ہے اسے ریجیکٹ کرتا ہے، جس کا کیا مطلب ہوگا، اس کی برکت، اس اتھارٹی کو ریجیکٹ کرنے سے اس کی برکت رک جائے گی۔ اس کا مطلب ہے اگر وہ کوئی بچے یا کوئی سمجھتا ہے کہ میری زندگی کے اندر میں آسکنگ بھی کرتا ہوں، میں اوبیڈینٹ بھی ہوں، کہیں نہ کہیں پر اگر آپ یہ اتھارٹی کو جو ہے وہ لوز کیا ہوا ہے تو آپ کی برکت رک سکتی ہے۔ اس سے اتھارٹی کو اپنے اوپر رکھیں۔ خداوند ہیڈشپ کرتا ہے، جیسے بیوی کا سر شوہر، شوہر کا سر مسیح، مسیح کا سر جو ہے وہ خدا۔ یہ ہیرارکی پائی جاتی ہے ہر ایک چیز میں۔ خداوند بھی کلیسیوں کے اندر، ایمانداروں کی زندگیوں کے اندر بھی ایسا ہی چاہتا ہے، آمین، کہ ہر ایک اپنی جگہ کے اوپر رہے اور اس سے جو ہے وہ آگے نکلنے کی کوشش نہ کرے۔ سو اتھارٹی کو رکھے۔ بعض دفعہ لوگ نہیں چاہتے کہ کوئی ہمیں جو ہے وہ دیکھے یا ہمیں واچ کرے، ہم اکاؤنٹیبل ہوں۔ ہماری بردر اینڈ سسٹرز، یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے اوپر کسی کو دیکھنے والا، واچ کرنے والا رکھیے، آمین۔ یہ کہتا ہے کہ ابھی اگر تم کرو گے اپنے بیٹوں کو تو پھر تو میں کیا کر سکتا ہوں، یا لاسٹ اتھارٹی تو تم ہی ہو، تم کو پھر خدا ہی ہے، اور پھر خدا نے دیکھا تو اٹھا کر نیچے پھینک دیا کہ جا، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اس لیے جو لاسٹ اتھارٹیز ہیں، یعنی مطلب کہنے کہ سپریم اتھارٹیز ہوتی ہیں، اگر وہ ٹھیک کام نہیں کرتی ہیں تو پھر خدا جو ہے وہ بڑے سخت انداز کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتا ہے۔ لہٰذا اتھارٹیز بھی ٹھیک ہوں اور نیچے بھی کام ٹھیک ہو۔ ہمارے ملک میں اس لیے یہ انارکی یا افراتفری پائی جاتی ہے کیونکہ اتھارٹیز جو ہے اپر سپریم اتھارٹیز وہ ٹھیک طور پر کام نہیں کرتی، اس لیے پورا کا پورا معاشرہ جو ہے وہ خرابی کی طرف جا رہا ہے۔ لاسٹ ٹائم میں نے بتایا کہ بائی کوویننٹ،
खुदा ने सुलह का अहद और इसराइल के साथ बांधा है, लेकिन उसने नहीं चाहा वो सुलह के अहद के ऊपर कायम रखें। जितने भी कवेनेंट्स हैं वो सारे के सारे सुलह के ही हैं। और फिर लास्ट में खुदा ने क्या किया है कि मसीह यीशु के वसीले से सारी दुनिया के साथ अहद बांधा। खुदा जो है वो कैसे अहद बांध रहा था, वो जो है इसराइल के साथ अहद था, लेकिन क्राइस्ट के वसीले से उसने सारी दुनिया के साथ अहद बांधा। अगर मैं उसके अहद में नहीं आना चाहता, मैं कौन सा क्रिश्चियन हूँ, लेकिन सुन याद रखिए मैंने ये बताया था, अगर खुदा अहद ना बांधे, ठीक है, तो दुश्मनी थी। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि हम दिल से उसके क्या थे, दुश्मन थे। ये तो खुदा का फजल है, वो इंसानों के साथ दोस्ती करना चाहता है, और किस तरीके के साथ, मसीह यीशु के वसीला से। आमीन। अदरवाइज अगर कोई शख्स जो है इस अहद में शामिल नहीं होता है तो फिर वो दिल से दुश्मन है, और दुश्मन मैंने बताया जब अहद से दस्तबरदार होते हैं, ताल वबाल नंग तलवार जो है वो कौमों, उम्मतों, मुल्कों, जिंदगियों, खानदानों के अंदर जो है वो शुरू हो जाती है। लेकिन जब जो ही अहद में अबाउंड होते हैं तो फिर क्या होता है, ताल वबाल नंग तलवार वहीं पर खत्म हो जाती है। लिहाजा हम अपनी बरकत पे एक्टिवेट कर सकते हैं। वो कैसे, इस नए अहद के खून के साथ जो हमारा अहद बंधा हुआ है, इसमें कायम और दायम रहे, और उसमें जो है वो चलते चले जाए। आमीन। आज जो बात बताने जा रहा हूं कि जितनी बरकतें खुदा हमें दे रहा है, ठीक है, और आप समझते हैं कि अब जो कुछ भी जिंदगी में जो है वो पहले हुआ और ना हो, तो हमें एक काम करना होगा, एक्टिवेट योर ब्लेसिंग बाय डिक्लेयरिंग नेवर अगेन। आमीन। अब हम आज क्या करेंगे, क्या डिक्लेयर करेंगे, क्या अनाउंस करेंगे, क्या ऐलान करेंगे, नेवर अगेन। आमीन। क्या कहेंगे, नेवर अगेन। अब मेरे साथ कहिए, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से वो सब जो मेरे साथ होता रहा वो फिर कभी ना हो, नेवर अगेन। और जब आप इस कलाम को सुनेंगे तो फिर आप लास्ट में हम ये कहेंगे, नेवर अगेन। आमीन। फिर कभी ना हो। और ये कैसे होगा, जब आप खुदावंद यीशु मसीह के नाम से जो है इसको डिक्लेयर करेंगे, इसको अनाउंस करेंगे। मैं इस बात को यीशु मसीह के नाम से हुक्म करता हूं कि ये मेरी जिंदगी में दोबारा ना हो, तो वो दोबारा नहीं होगी। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, याद रखना चाहिए कि जब ये इकरार आप अपनी जिंदगी में करेंगे तो नाकामी और शिकस्त का खात्मा हो जाएगा। जो पीछे पीछे चली आती है, ठीक है, बावजूद इसके क्या करती है, पीछे पीछे चली आती है, आप उसका रास्ता बंद कर देंगे, आप उसे रोक देंगे। नेवर अगेन। आमीन। दोबारा नहीं ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। पैदाइश की किताब उसका 9वां बाब और उसकी 15वीं आयत, खुदावंद खुद कहता है नेवर अगेन। ये खुदावंद का खूबसूरत लफ्ज जो है, ये मकूला कह लीजिए, ये मेरी बात नहीं है, बल्कि ये किसकी बात है, खुदावंद की बात है। नेवर अगेन ये खुदावंद को पसंद है। वो हर एक की जिंदगी के अंदर ये बात जो है डाल देना चाहता है, क्या, नेवर अगेन। आमीन। पैदाइश की किताब उसका 9वां बाब उसकी 15वीं आयत में क्या लिखा है, कोई आके सामने आके इधर आके पढ़ो। 9वां बाब और उसकी 15वीं आयत। और मैं अपने अहद को जो मेरे और तुम्हारे और हर तरह के जानदार के दरमियान है याद करूंगा, और तमाम जानदारों की हलाकत के लिए पानी का तूफान फिर न होगा। आमीन। फिर ना होगा, नेवर अगेन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद क्या कहता है, फिर ना होगा, कभी नहीं होगा। आमीन। ये खुदावंद कहता है, खुदावंद खुद कहता है, क्या, फिर ना होगा। अगर मैंने मारा है, अगर मैंने जो है डुबो दिया है, तो फिर क्या होगा, फिर ना होगा। आमीन। फिर ना होगा। ये किसके साथ अहद कर रहा है,
یہ کس کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے؟ یہ نوح کے ساتھ اور اس کے سارے خاندان کے ساتھ یہ عہد باندھ رہا ہے کہ اب پھر نہ ہوگا. خدا ہماری زندگیوں کے اندر بھی ایسا ہی کرنا چاہتا ہے کہ اب کے بعد پھر نہ ہوگا. آمین. اگر آج آپ دیکھیے کہ کون کون سی چیز جو ہے دوبارہ آپ کی زندگی کے اندر یا اٹھ رہی ہے یا آ رہی ہے تو آپ سے کیا کرنے والے ہوں؟ یاد کی یسوع مسیح کے نام سے میں تجھے حکم کرتا اور کرتی ہوں نیور اگین. آمین. پریز دی لارڈ. موسیٰ اسرائیل کے لوگوں کو کیا بتاتا ہے؟ کسی کو یاد ہے موسیٰ نے اسرائیلی کو کیا کہا؟ ہاں جی، موسیٰ نے اسرائیل کے لوگوں کو کیا کہا؟ کسی کو یاد ہو؟ خروج 14:3 میں لکھا ہے تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا ڈرو مت. کیا کہا؟ ڈرو مت. چپ چاپ کھڑے ہو کر خدا ان کی نجات کے کام کو دیکھو جو آج تمہارے لیے کرے گا، کیونکہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو، آگے بولیے، ان کو پھر کبھی اب تک نہ دیکھو گے. نیور اگین. ہاللیلویا. آپ کیا کریں گے؟ نہیں دیکھیں گے اسے. کیا آپ چاہتے ہیں، کیا آپ سوچتے ہیں کہ یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں جسے ڈر اور خوف یا زندگیوں کے اوپر چھا چکا ہے، جو ان کا پیچھا کر رہے تھے، جو ان کو ڈرا رہے تھے کہ اب تمہیں دبوچ لیں گے، ہم تجھے پکڑ لیں گے، ہم تجھے پھر اپنا غلام بنا لیں گے اور تمہیں گھسیٹ کر مصر میں لے جائیں گے اور پھر تم سے تم پر تشدد کریں گے، تمہیں اذیت دیں گے، تم سے اینٹیں بنوائیں گے اور تمہیں مار مار کے ادموا کر دیں گے. تم کراہتے رہو گے روٹی اور پانی کے لیے، تم پریشان ہوگے اور تم چیختے رہو گے. لیکن خدا فرماتا ہے کہ نیور اگین. تم مصریوں کو، تم اس فرعون کو دوبارہ نہیں دیکھو گے. بائبل کہتی ان کو پھر کبھی اب تک نہ دیکھو گے. ہاللیلویا. دوسرے الفاظ میں فرعون ظلم نہیں کرنے پائے گا. دوسرے الفاظ میں وہ تم پر تشدد نہیں کرنے پائے گا. ہاللیلویا. اور جو کچھ خدا کہتا ہے اور جو کچھ خدا فرماتا ہے اور جو کچھ وہ کہہ دیتا ہے وہ حتمی ہے. آمین. وہ کیا ہے؟ وہ حتمی ہے. نہ اس میں گھٹایا جا سکتا ہے، نہ اس میں بڑھایا جا سکتا ہے. اگر وہ اسرائیلیوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ وہ دوبارہ تم اسے نہیں دیکھو گے، دوبارہ میں طوفان نہیں لاؤں گا، تو پھر اس کا مطلب ہے وہ ایسا ہی ہے. آمین. لہذا آپ کو جو ہے دلیر ہونا ہوگا کہ میں اپنی بلیسنگ کو جو ہے وہ قائم رکھنے کے لیے جو ہے اس کو جو ہے سیدھا سیدھا کیا کر دوں گا؟ وہ روک دوں گا. میں اسے جو ہے اسی کی جگہ کے اوپر تھما دوں گا. اور کیا ہوا تھا وہاں پر؟ وہ پار ہو گئے اور وہ ڈوب گئے. آمین. وہ پار ہو گئے اور وہ کیا ہوئے؟ وہ ڈوب گئے اور وہ وہیں کے وہیں پر جب وہ تھم گئے، کیونکہ خدا نے کہا کہ اب تم انہیں نہیں دیکھو گے. اگر انہیں دیکھا بھی تو ان کی لاشوں کو دیکھا. آمین. اگر انہیں دیکھا تو ان کی لاشوں کو دیکھا اور ان کی گھورتی ہوئی آنکھوں کو نہیں دیکھا، ان کی وہ بند آنکھوں کو دیکھا، مری ہوئی آنکھوں کو دیکھا اس نے. پریز دی لارڈ. اور یہ ایسا ہی ہے جب آپ زبور 9 اور 16 آیت میں پڑھتے ہیں، وہاں پر لکھا ہے دشمن تمام ہوئے. آمین. کیا ہوا؟ دشمن تمام ہوئے، وہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئے. یہ داؤد کہتا ہے. اور جن شہروں کو تم نے ڈھا دیا ان کی یادگار تک نہ نہیں رہے گی. آپ اس ورس کو پڑھ سکتے ہیں، اونچی آواز کے ساتھ یہ بات جو ہے اس کا ذکر کر سکتے ہیں. جب آپ جو ہے اس بات کو نیور اگین کو اپنی زندگی کے اندر جو ہے یسوع مسیح کے نام سے ڈکلیئر کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ یہ اعلان کرنے والے ہوں گے. اور وہ کیا اعلان ہے؟ Praise the Lord. Hallelujah. دشمن تمام ہوئے، وہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئے. اور جن شہروں کو تم نے ڈھا دیا ان کی یادگار تک
ना रहेगी। हालेलुया। अजीज बहनों भाइयों, आप अपने दुश्मन को जो है, जिसको आप देख रहे हैं, वो वही का वही क्या हो जाएगा, जाता रहेगा, वो खत्म हो जाएगा, वो नजर भी नहीं आएगा, और वो जो है वो पाताल में चले जाएगा, और जिन शहरों को ढा दिया है वो तामीर भी नहीं किए जाएंगे। आमीन। वो तामीर भी नहीं किए जाएंगे। इसलिए खुदा ने यरीहो को जब वो गिरा दिया तो उसको कहा कि ये दोबारा तामीर नहीं होगा। आमीन। जो इसको जो है इसकी बुनियाद को रखेगा, जो है उसका फिलौटा मारा जाएगा। आमीन। और किसी ने ऐसी जरूरत करने की कोशिश की भी, ऐसी जरूरत करने की कोशिश की कि उसे तामीर किया जाए, उसका फिलौटा मर गया, क्योंकि खुदावंद ने ये बात कही हुई थी। अजीज भाइयों, जब हम अपनी जिंदगी के अंदर इस तरह की डेकोरेशन करते हैं, यीशु मसीह के नाम से उसके हुक्म को अपनी जिंदगी के अंदर आने देते हैं, तो फिर ना तूफान हमारी जिंदगी में आने पाता है, और ना फिर वो दुश्मन जो हमारा पीछा करता, हमें अजीयत देता, हमें तशद्दुद करता है, वो कभी भी हमारी जिंदगियों के ऊपर जो है वो नजर नहीं आएगा, वो तमाम हो जाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यशायाह 65:17 के अंदर लिखा है। आपको मैं जो है ये इन वर्सेस के जरिए से जो है वो जोश दिलाना चाहता हूं कि ताकि आप जब खुदावंद के हुजूर में खड़े हो तो फिर आप अपने जो है इन दुश्मनों को, इन चीजों को रोक सके। यशायाह 65:17 के अंदर लिखा है, क्योंकि देखो मैं नए आसमान और नई जमीन को पैदा करता हूं, और पहली चीजों का फिर जिक्र ना होगा, और वो ख्याल में ना आएंगी। आमीन। आप आगे की तरफ ध्यान कीजिए। हमें खुदावंद जो है खूबसूरत चीजें देने के लिए जो है वो वादा कर रहा है, वो अच्छी से अच्छी चीजें देने के लिए हमारे साथ वादा कर रहा है। नए आसमान का वादा है, नई जमीन का वादा है। आमीन। मैं नए आसमान और नई जमीन को पैदा करता हूं, और पहली चीजों का फिर जिक्र ना होगा, फिर नेवर अगेन। आमीन। नेवर अगेन हम उनको जो है वो याद करेंगे, उन चीजों का जिक्र करेंगे कि किसी वक्त में जो है वो अमेरिका हुआ करता था, इस जमीन के पर अमेरिका था, इस जमीन पर बड़े बड़े मुल्क थे, इस जमीन पर यूरोप की बड़ी बड़ी ताकतें थी, बड़े बड़े जो है ये कंट्रीज पाए जाते थे, उनका जिक्र भी नहीं होगा, और जो है किसी भी बात को आप उसका जो है वो जिक्र नहीं करेंगे, वो आपके ख्याल में भी ना आएंगी। आमीन। कभी भी नहीं, किसी तरीके से भी नहीं। और ये कैसे होगा? ये खुदा के वादे हैं जो हमारी जिंदगियों के अंदर ये कायम रहेंगे। और जब आप जो है चीजों को जो है रोक देंगे, जब आप चीजों को जो है स्टॉप कर देंगे, तो फिर वो जिंदगियों के अंदर नहीं आएंगी। आमीन। और इसी जगह के ऊपर जो है ये मिलेनियम किंगडम के हवाले से बात की गई है। फिर कभी वहां कोई ऐसा लड़का ना होगा, आमीन, जो कम उम्र है, और ना कोई बूढ़ा जो अपनी उम्र पूरी ना करे, क्योंकि लड़का 100 वर्ष का होकर मरेगा, जो गुनाहगार 100 वर्ष का हो जाएगा, मालूम होगा। तो अंदाजा कीजिए कि वो चीजें जो है वो फिर कभी नहीं वजूद में आएंगी, और वो चीजें हम देखेंगे जो खुदावंद की तरफ से बाबरकत है, ब्लेस्ड है। आमीन। तो नेवर अगेन का नारा ये ईमानदारों की जिंदगी के अंदर होना चाहिए। नेवर अगेन फिर कभी ना होगा, तो आपको अपनी जिंदगी के अंदर लेकर आना होगा, और ये एक्टिवेशन जो है यीशु मसीह के नाम से होगी। ये यीशु मसीह के नाम से रूहुल कुदस की कुदरत के साथ ये एक्टिव होगा। ये नेवर अगेन खुदावंद यीशु मसीह के नाम से और रूहुल कुदस की पावर से, उसकी स्ट्रेंथ के साथ ऐसा होगा, और वो जो चीजें पीछा करती हैं वो रुक जाएंगी, और आपकी ब्लेसिंग जो है वो रहनुमा होगी, और आप अपनी बरकत के अंदर जो है वो एंजॉय करेंगे। आप अपनी बरकत के अंदर जो है वो क्या करेंगे? फ्रूटफुल होते चले जाएंगे, और आपको कोई रोकने वाला ना होगा, आपकी बरकत को रोकने वाला कोई ना होगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो रुकती है, हाँ, और हम जंग की हालत में रहते हैं, तो क्यों ना फिर हम कहें नेवर अगेन इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से
दोबारा ना होने का मैं हुक्म करता हूँ और वो वैसा ही हो जाएगा। Praise the Lord। यशायाह 62:4 में जो है ये खूबसूरत बात कही गई है, तू आगे को मत रुकाना कहलाएगी। आमीन। तू आगे को नेवर अगेन। और तेरे मुल्क का नाम फिर कभी खराबा ना होगा, बल्कि तू प्यारी हो तेरी सरजमीन सुहागन कहलाएगी, क्योंकि खुदा तुझसे खुश है और तेरी जमीन खामन वाली होगी। आमीन। तू आगे को मत रुका ना कहलाएगी। आमीन। तो ये सिचुएशन जो जब कौमों और उम्मतों के अंदर, खानदानों के अंदर पैदा हो जाती है कि मेरा क्या होगा, और खुदा उनके वादों को आप याद करके जो है नेवर अगेन का जो है वो स्लोगन बुलंद करें। आमीन। ये नेवर अगेन जब आप कहेंगे तो फिर क्या होगा, हम इसको कबूल करते हैं। यस लॉर्ड। वादों को हाँ कीजिए, दुश्मन को जो है डिसअलाउ करे कि भी वहीं पर रुक जाए, और फिर वो अपनी जगह के ऊपर रुक जाएगा और वो मूव नहीं करेगा। हम जो है वो उनको जो है इजाजत दे देते हैं, हम अपनी जगह के ऊपर रहते हैं और बेशक अपनी बरकतों से आसूदा रहते हैं, लेकिन दुश्मन को भी रोकना होगा। दुश्मन को भी कहना होगा कि तू जो है यहाँ पर रुक जा, नेवर अगेन। ये खुदावंद भी यही चाहता है कि जो है वो मिस्री जो है वो इनकी तरफ ना आए। वो नहीं चाहता कि तूफान हमारी जिंदगी के अंदर आए, वो नहीं चाहता कि ये मतरुका कहलाए। आमीन। और ये नहीं चाहता खुदावंद के हम इसी जमीन के रह जाएं, बल्कि वो हमें आगे की तरफ और नई नई ब्लेसिंग की तरफ हमें मूव करना चाहता है। हमें जो है नई प्रॉस्पेरिटी की तरफ हमारे माइंड को लेकर जाना चाहता है, हमें और तरीके से प्रॉस्पर करना चाहता है, खुशहाल बनाना चाहता है। और ये कैसे हो सकता है, ये किस तरह मुमकिन हो सकता है, जब आप जो है नेवर अगेन को जो है अपनी जिंदगी के अंदर लेंगे। ये खुदावन के अंदर ये बात है, ये खुदावन फरमाता है, ये उसका कलाम है कि वो फिर कभी ना होगा, वो अब तक ना होगा। हालेलुया। जिनको तुम देखते हो फिर कभी ना देखोगे। आमीन। इवन तो ज़करिया 14:11 के अंदर लिखा हुआ है कि लानत मुतलक ना होगी, लानत मुतलक ना होगी। नेवर अगेन कर्स जो है वो कभी जो है वो जिंदगियों के अंदर ना होगी। और जब आप 14:11 में पढ़ते हैं तो उसमें ये आयत है, और लोग उसमें सुकूनत करेंगे और फिर लानत मुतलक ना होगी, बल्कि यरूशलेम अमन व अमान से आबाद रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो गोया आप ये देखिए कि अगर हमारी जिंदगी के अंदर यह कर्स मूव कर रही है तो उसे क्या करना पड़ेगा कि उसको रोकना पड़ेगा। उसको कहेगा नेवर अगेन। आमीन। अगर तूफान उठते रहते हैं नेवर अगेन, और दुश्मन पीछा करता रहता है, उसे कहना होगा नेवर अगेन। और कैसे? मैं तो कह दूंगा, लेकिन साथ में यीशु मसीह के नाम से, पावर ऑफ द होली स्पिरिट, इनके जरिए से हम ऐसा कर सकते हैं। यीशु मसीह के नाम की अथॉरिटी को इस्तेमाल कर कर, रूहुल कुदस की पावर का इस्तेमाल कर कर हम इनको रोक सकते हैं। आमीन। यीशु ने अपने शागिर्दों से ये बात कही थी, ये बताया था कि आप ये क्या कर सकते हैं, और मैं इसका जिक्र भी कर चुका हूं। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर क्या होगा, वो खुलेगा। तो ये आप किस अलाउ करेंगे और आप अलाउ करेंगे, आप इजाजत देंगे, ठीक, तो वो जो है आएंगे, और आप अगर इजाजत नहीं देंगे तो वो क्या होगा, वहीं के वहीं झुक जाएंगे। तो क्या मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे तो वो क्या होगा, वो आसमान पर बंध जाएगा, और जो तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर क्या होगा, वो खुलेगा। लिहाजा इसका मतलब ये है कि हम किस तरीके के साथ ऐसा कर सकते हैं। मैं इसको ये बता रहा हूं यीशु मसीह के नाम से, लेकिन हमारे पास जो अथॉरिटी है वो क्या है, जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर क्या होगा, खुलेगा। लिहाजा जब मैं ये कहता हूं कि मैं यीशु मसीह के नाम से बांधता हूं तो, और तुझे हुक्म करता हूं कि दोबारा इस मेरी जिंदगी में, मेरे खानदान की जिंदगी में, मेरी उम्मत में, मेरे मुल्क में ना आए,
तो फिर ऐसा ही होगा। खुदा यीशु मसीह भी ऐसे कहता है कि फिर वो स्पिरिट को डांटता था और हुक्म करता था कि दोबारा जो है ना आना, और वो फिर नहीं आते थे। आमीन। आपको जो है ये हुक्म करके जो है उसे जब भगाना होगा, आपको हुक्म कर जो है उसे डांटना होगा, और जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक जो है उनको ऐसा ही मालूम होगा कि ये इजाजत मिली हुई है। आप दुआ कर रहे हैं, आपको मिल रहा है, आप ओबीडिएंट हैं, आपको जो है आपकी बरकत मिल रही है। लेकिन साथ साथ दुश्मन जो है वो क्या कर रहा है, मुख्तलिफ जो है तौर तरीके इस्तेमाल कर रहा है या ढूंढ रहा होता है कि मैं किस तौर पर इसकी बरकत को जो रोक सकूं या इसको जो है वो खत्म कर दूं। आप ये देख सकते हैं, आप हैरान होंगे कि किस तौर पर जो है हम कर सकते हैं। ये है कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बनेगा, आसमान जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर क्या होगा, वो खुलेगा। आमीन। आप अपनी बरकतों को एंजॉय कर रहे हैं, अच्छे तरीके से रोटी खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं या फैमिली के साथ, और साथ ही वो जो है वो भी अपना चक्कर चलाना शुरू कर देता है। नेवर अगेन, तो दोबारा यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे बांधता हूँ, यहाँ से क्या हो जा, दफा हो जा, और दोबारा उसी मौके पर रह। इसके करीब इस बाउंड्री लाइन को तुझे क्या करना है, क्रॉस नहीं करना है। आप अपने घर की बाउंड्री के बाउंड्री के अंदर जो है वो शैतान को जो है इजाजत नहीं दें। आमीन। आप अपनी बरकतों से आसूदा हैं, आप जो है अपनी बरकतों में जो है वो शाद हैं, आप अपनी बरकतों को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ कमजोरियों के जरिए से वो आता है। आप जो है खुदा यीशु मसीह के नाम से उस इख्तियार के साथ जो है वो ऐसा करें। आमीन। ये इसको आपने एक्सरसाइज करना है, और जब तक आप इसकी एक्सरसाइज नहीं करेंगे, इस इख्तियार की जो हर एक ईमानदार को हासिल है, हर एक शागिर्द को हासिल है। आमीन। हम में से हर एक उसका शागिर्द और उसका हर एक ईमानदार है। क्या इसमें शक है? बताइए, मैं पूछूं कौन कौन खुदा के साथ आएंगे तो वो करेंगे और वो हुक्म करेंगे, बेशक ऐसा है, लेकिन अजीज बहन भाइयों आपको भी करना होगा। क्या नहीं करना होगा? करना चाहिए। ठीक है, हम नहीं करते, हम सिंपल तरीके के साथ जो है ये अपने घरों में दुआएं उठा रहे हैं, हम सिंपल तरीके के साथ जो है एक खानदानी दुआएं उठा रहे हैं, और उसको जो है वो जोरदार तरीके के साथ रोकना होगा, जोरदार तरीके के साथ जो है उसको क्या करना होगा, रोकना होगा। आमीन। और बाइबल मुकद्दस में जब आप जो है उसे मौका देंगे तो वो तो क्या करेगा, वो तो आगे ही तैयार है, उसे डिसअलाउ करे, तुझे इजाजत नहीं है। कहते कैसे? यीशु मसीह के नाम से, और कैसे? रूहुल कुद्दुस की पावर से। हालेलुया। और फिर वो क्या करेगा, तुम दबाकर भाग जाएगा और वो नजर भी नहीं आएगा। हालेलुया। आप उसको जो है ये कहिए, उसको नेवर अगेन कहिए कि मैं तुझे अपनी जिंदगी को कंट्रोल करने ना करने का हुक्म देता हूं। आपको मालूम है बाइबल मुकद्दस क्या कहती है, अपने इसका मुकाबला करो तो वो तुमसे क्या होगा, और वो हर तरह की झूठ का बाप है। आप उससे कहे नेवर अगेन। आमीन। उसे क्या कहें, नेवर अगेन। और फिर क्या होगा, वो हमारी जिंदगी से दूर हो जाएगा, हमारी जिंदगी को वो तरह कर देगा कि अगर हमारी जुबान जो है उसके कंट्रोल में आ जाती है और हम उसी की जुबान बोलते हैं, और जो कुछ हमारे दिल के अंदर जो है, जो कुछ दिल में है वो बाहर आ रहा है। आप जो है इसको हुक्म कीजिए यीशु मसीह के नाम से, नेवर अगेन। अपनी जुबान को जो है वो काबू रखने के लिए से कहें नेवर अगेन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। उन बातों को जो आपकी जिंदगी के अंदर बार बार हो रही है और वो आपको उलझा रही है, एक ही बात जो है आपको उलझा रही है, उसे यीशु मसीह के नाम से कहें नेवर अगेन। आमीन। और अगर हमारी जिंदगियों को जो है वो अंदर जो है वो हलचल मचाना चाहता है, हमारी जिंदगी में गुनाह को जो है वो लेकर आता है, आप उसको कहना नेवर अगेन। आमीन। वो हमारी जो है अज़ा का इस्तेमाल करता है, जैसे मैंने बताया है, और वो जो है उन अज़ा के जरिए से जो पांव जो है वो बदी की तरफ भाग रहे हैं, हाथ जो है वो खून रेजी की तरफ भाग रहे हैं, मुंह जो है वो अपना गाली गलौज की तरफ जो है वो मूव कर रहा है, तो फिर क्या करना होगा,
मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से हुक्म करता हूँ, never again। जिसको मैं बॉडी में तुझे यीशु मसीह के नाम से हुक्म करता हूँ कि तू जो है यीशु के ताबे हो जा। आमीन। अगर हमारी जिंदगी के अंदर जो है खौफ की स्पिरिट मूव करती रहती है, वो आती रहती है और गाहे बगाए जो है वो हमें जो है तंग करती रहती है और हमें जो है परेशान कर रही है, उसे कहे never again। मैं तुझे अलाउ करता हूँ, जब डिसअलाउ करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, तो वो फियर की स्पिरिट जो है वो स्टॉप हो जाएगी। आमीन। बात दफा क्या होता है हमारी जिंदगी के अंदर जो है इमेज चीजें जो है वो उठती हैं, जैसे प्राइड है, जैसे घमंड है, हसद है, जो अंदर होता है, और जो है भुगस है, ठीक है, बेइज्जती है जो पाई जाती हैं, उनको कहे यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे हुक्म करता हूँ नेवर अगेन, चाहे मेरी जिंदगी के अंदर यह वो नजर आए। इन चीजों को रोकना पड़ता है, इन चीजों को एक जगह पर खड़ा करना पड़ता है, नहीं तो ये जो है ये भागी चली जाती हैं, ये भागी चली जाती हैं और हमारी बरकतों को जो है वो खा जाती हैं। हसद खा जाता है जो है, ये बुग़्ज़ खा जाता है, गैबत खा जाती है, ये सब चीजें हैं जो हमारी बरकतों को खा जाती हैं। ये जो है नशा है, ये जो है लड़ाई झगड़े हैं, तफरके हैं, जुदाइयां हैं, जो हमारी जो है जिंदगियों को, हमारी बरकतों को खा जाती हैं। क्या करने की जरूरत है, क्या कहने की जरूरत है, क्या कहने की जरूरत है? यंग्स बोले नेवर अगेन। आमीन। जो चीजें बार बार हमारी जिंदगियों के अंदर आ रही हैं और मैं जो है खुदावंद के अंदर चल रहा हूं और ये मेरे लिए जो है वो मुश्किल पैदा कर रही है और मेरे जो है मसीही जो है वॉक में या खुदावंद में चलने में रुकावट पैदा कर रही है, उनको आप नेवर अगेन, और वो आप रुकेंगे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से नेवर अगेन। आमीन। और फिर आप ये देखिए कि बाप जो है अगर बार बार हमारे फाइनेंसेस के ऊपर जो है उसका हमला होता है, ठीक है, हमारे जो है वो रुपए पैसे के ऊपर, हमारे कारोबार के ऊपर, हमारी जो है वो जेबों के ऊपर, हमारे किचन के ऊपर जो है वो बार बार हमला होता है, तो क्या करेंगे? नेवर अगेन विल अलाउ सैटन टू कंट्रोल माय फाइनेंसेस। आमेन। In the name of the Lord Jesus Christ. आमीन। मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से हुक्म करता हूँ कि तू दोबारा मेरे कारोबार के ऊपर हमलावर ना होना। मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से हुक्म करता हूँ कि तू मेरी सैलरी के ऊपर हमलावर ना होना। मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से हुक्म करता हूँ तो मेरे किचन की तमाम चीज़ों को खाली करने की तरफ राग़िब न होना। मैं तो जो है हुक्म करता हूँ कि दोबारा ना मेरे किचन, ना मेरी जेब, ना मेरे कारोबार, जहाँ जहाँ आपका फाइनेंस जो है वो आ रहा है, जिस जगह से आपका जो है या रुपया पैसा और जो आपका जो मूवमेंट है, वहाँ पर इब्लीस की कुव्वतें जो हैं वो मूव करती हैं, उसके एजेंट्स जो है वो मूव करते हैं और वो जो है दोबारा भेजते हैं। ये 30 आ गई है, ये 27 आ गई है, चेक लिखे जाते हैं और जो है बहुत कुछ हो रहा है, वो भेजते हैं कि जा जो है वहाँ पर जो है कब्जा कर ले। मैं आपको जो है ये एक फॉर्मूला देता हूँ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, नेवर अगेन जो है वो तू मेरे जो है फाइनेंसेस के सारे जो है रास्तों के ऊपर से गायब हो जाए, डिसअपीयर। और वो क्या होगा? बोलिए, आपके फाइनेंसेस के ऊपर खुदावंद की बरकत आना शुरू हो जाएगी। आमीन। और आप अपनी जिंदगी के अंदर जो है खुदावंद की बरकतों का तजर्बा कर पाएंगे और फिर आप अजीब तरीके के साथ जो है खुदावंद की हुजूरी को एंजॉय कर पाएंगे। दरअसल खुदावंद का ये एक खूबसूरत मकूला है, ये उसे पसंद है कि वो ऐसा कहता है। वो ये नहीं चाहता कि हमारी जिंदगी के अंदर तूफान आए, वो नहीं चाहता कि हमारी जिंदगी में दुश्मन आए और वो दूर करके कहता है कि वो दोबारा नहीं आएगा। लेकिन हम अपने जो है वो हमें ये भी बताता है कि आप भी ऐसा करें, उसे रोकें, उसे कहें, वो आपको सिखाना चाहता है, वो आपको सिखाता है इसके तरफ से। लेकिन हम सीखना नहीं चाहते हैं, हम उसे रोकना नहीं चाहते कि ये हमारे लिए मुश्किल है। नहीं, हमारे पास ब्लड ऑफ क्राइस्ट है, बरे का खून हमारे पास है, हमारे पास अपनी गवाही है। क्या आपके पास जो है मसीह गवाही नहीं है? बोलिए,
کہ ہم جو ہے کرسچن وٹنس نہیں رکھتے, کرسچن ٹیسٹیمنی نہیں رکھتے ہیں. یہ وجہ ہے, شیطان جانتا ہے کہ یہ اپنے اندر کیا کچھ رکھتا ہے, جس کے سبب سے اس کو دلیری مل جاتی ہے اور وہ دوبارہ آتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ کیسے دوبارہ آیا؟ جب ایک بدرو نکل گئی, یہ یسوع مسیح نے بیان کیا تھا, جب بدرو نکلتی ہے کسی سے تو وہ کیا کرتی ہے, بولیے, وہ ویران مقاموں میں جاتی ہے, سوکھے مقاموں میں چلی جاتی ہے. تھوڑے عرصے کے بعد وہ کیا کرتی ہے, میں دوبارہ. یہ ابلیس کا چکر ہے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے. وہ دوبارہ آتا ہے, لیکن خدا کہتا ہے نیور اگین. ہم ایسا کر سکتے ہیں, وہ دوبارہ آتی ہے. اور پھر بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے, اس نے جو ہے ڈرتے ڈرتے, یاد رکھیے ابلیس کی قوتیں جب کسی سے نکلتی ہیں, جب ابلیس پہ چڑھتا ہے تو دوبارہ آتے وقت جس وہ دفعہ سوچتا ہے, ڈرتے ڈرتے دیکھتے ہیں چھاپتے ہوئے رکھنا ہے, کھڑکی تھوڑی سی کھلی ہوئی ہے, تھوڑا سراخ ہے, اس میں سے اس کی آنکھ اسے جھانک لیتی ہے. وہ دیکھتی ہے یہاں تو بڑی سجا ہے, ویری ڈیکوریٹڈ ہے. وہ بھاگتی ہے, ذرا سا جو ہے وہ پش کرتی دروازہ, تو ایک دم سے وہ دروازہ کھل جاتا ہے. واہ, دروازہ کھلا ہوا ہے. اور دین وہ اندر جاتی ہے, وہی کچھ کاروائی ہوتی ہے تھوڑی دیر کے لیے. اپنی وہ حسرت جو اس کو جو ہے کافی دیر سے جو ہے اسے نہیں ملی تھی, وہ پوری کر کے کہتی نہیں, میں اپنی سہیلیوں کو بھی لے کر آتی ہوں. اور وہ دوبارہ جاتی ہے, ساتھ بری ہمراہ لے کر آتی ہے, اور وہ 8 ہو کر جو ہے اس گھر کا ستیہ ناش کر دیتی ہے. لہذا اس کو نیور اگین کا جو ہے سبق یاد دلائیے. آمین. نیور اگین کا کیا کرنا ہے, ہم نے سبق یاد دلانا ہے اسے کہ اے بری روح, اے ایول اسپرٹ, میں تجھے یسوع مسیح کے نام سے اس وعدے کے عین مطابق جو وہ فرماتا ہے کہ تو پھر کبھی نہ دیکھے گا, تو پھر کبھی جو ہے طوفان نہ لاؤں گا, تو متروکہ نہ کہلائے گی, تو لعنت مطلق نہ رہے گی. ہاللویا. میں اس وعدے کو یاد کر کر میں جو یسوع مسیح کے نام سے باندھتا یا باندھتی ہوں, تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ ایکسپیرینس کریں گے. تو آپ اپنے اندر ایک ایسی جو ہے اطمینان اور ایسی قوت محسوس کریں گے جو کبھی آپ نے اپنی زندگی کے اندر نہیں دیکھا ہوگا. آمین. یہ پریکٹیکل سرمنز ہوگا, یہ پریکٹیکل ہوگا. آپ کو یہ پریکٹیکلی طور پر آپ کو جو ہے اس کی پریکٹس کرنا ہوگی. یہ مختلف طریقوں سے جو ہے ابلیس آتا ہے. کیسے جو ہے وہ آپ کے فائنانسز کے اوپر جو حملہ کرے گا, وہ آپ کو جو ہے وہ آپ کو سن کے ذریعے سے ڈومینیٹ کرے گا آپ کی زندگی کو. وہ آپ کی باڈی کو یوز کر سکتا ہے, مختلف اعضاء کا استعمال کرتا ہے. وہ آپ کو فیئر کے ساتھ یعنی یا ڈر اور خوف کے ساتھ جو ہے آپ کو دھمکانے کی کوشش کر سکتا ہے. پرائڈ یا گھمنڈ, حسد, جائلس کے ذریعے سے جو ہے وہ آپ کی زندگی کے اندر موو کرتا ہے. وہ بری باتیں کرنے سے جو ہے وہ ایسا جو ہے ہماری زندگیوں میں موو کرتا ہے. وہ جھوٹ فریب کے ساتھ, دغا بازی کے ساتھ جو ہے وہ موو کرتا ہے, اور جو ہے ہماری زندگیوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہمارا منہ گند مند بولتا رہے. چنانچہ ان تمام چیزوں کے اوپر آپ کو جو ہے ایک پوسٹر بنانے کی ضرورت ہے, آپ کو ایک ہیڈنگ دینے کی ضرورت ہے. اور وہ ہیڈنگ کیا ہے, بولیے, never again. Amen. آپ کو ہر جگہ کے اوپر, ان تمام راستوں کے اوپر جو ہے ایک جگہ پر لکھنا ہوگا never again. اور جب آپ ایسا کریں گے تو یقین جانیے آپ اپنی زندگی کے اندر جو ہے بڑی تسلی اور اطمینان اور قوت اور سوق کو, خوشی کو, اطمینان کو, شلوم جس کے اوپر میں کلام اس کا, شلوم کے اوپر کلام اس کا. پروسپیرٹی کا کیا مطلب ہے, جو ہے وہ شلوم, بلیسنگ کہ ہے یہ پروسپیرٹی, یہ سب جو ہے اس کا جو روٹ ہے شلوم, جس کا مطلب ساؤنڈنس, کمپلیٹنس. آمین. ساؤنڈنس اینڈ کمپلیٹنس اینڈ پیسفل مائنڈ. یہ اس کا مطلب پروسپیرٹی کا یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے. خوشحالی کا کیا مطلب ہے, ساؤنڈنس. ٹھیک ہے. پائیداری, کمپلیٹنس, کاملیت آپ کی زندگی کے اندر آئے گی. آپ کمپلیٹ سے معلوم ہوں گے. پیسفل مائنڈ, فل پیس آف مائنڈ, فل پیس آف مائنڈ کو ہم شلوم کہتے ہیں. لہذا آپ کی زندگی کے اندر فل پیس آف مائنڈ آ جائے گا. دیٹ از کالڈ پراسپیرٹی, بلیسنگ. آمین. اور یہ ایکٹیویشن خدا نے ہماری زندگی کے اندر کرنا چاہتے ہیں, بائی آسکنگ, بائی اوبیڈینس, بائی
authority person by giving, by covenant, and by declaring never again. आपको डिक्लेयर करना होगा। जब तक हम इसको डिक्लेयर नहीं करेंगे, जब तक आप इसका इकरार नहीं करेंगे, तब तक जो है वो आएगा नहीं। आप देखेंगे, यकीन जानिए, आप देखेंगे कि वो जो सदियों से या सालों साल से मूव कर रही ना चीजें, बार बार जो है वो धक्काशाही से अंदर दाखिल हो जाती हैं, ना चाहते हुए आ जाती, हम ना चाहते हुए जो है वो हम पर हमलावर हो जाती हैं। आपके ये डिक्लेयर करने से वो वहीं के वहीं दफा दूर हो जाएगी। आमीन। मैं चाहता हूं कि हम इन बातों का इकरार करें। मैं चाहता हूं कि जिस तौर पर खुदा का रूह आपको उभारता है, उस तौर पर इकरार करना शुरू करें और जो है एग्रेसिव माइंड के साथ अपने इसको रोकिए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से यह है रूह कुदस की कुव्वत को अपने अंदर महसूस करते हुए यह है आप उसके रास्तों के ऊपर खड़े, रास्तों को जो है वो रोक दिए और वैसा ही होगा। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करना शुरू करें। मैं चाहता हूं कि आप अपने हाथों को खुदावंद की तरफ बुलंद करें और अपने आप को उसके सामने पेश करें। खुदावंद, मैं तेरे सामने आजिज़ होता हूं, मैं तेरी अथॉरिटी के लिए शुक्र करता हूं जो तूने मुझे दी है, मुझे निफरादी तौर पर दी है। खुदा के मैं जो है जो कुछ जमीन पर बांधूंगा वो आसमान पर बंधेगा, मुझे यकीन है। जो कुछ जमीन पर मैं खोलूंगा वो आसमान पर खुलेगा, मुझे यकीन है। हालेलुया। बहुत सारी चीजें हैं जो दोबारा मेरी जिंदगी में आ रही हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं गुनाह को जो बार बार मेरी जिंदगी में आ रहा है, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मैं उसे रोकता हूँ, मैं उसे दोबारा ना होने का हुक्म करता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से वो सारी जो गाली गलौज या बुरी बातें जो मेरी जिंदगी के अंदर बार बार आती हैं, यीशु मसीह के नाम से मैं उसे जो है दोबारा ना होने का हुक्म करता हूँ। वो जो है वो सारी बातें जो मुझे जो है घमंड की तरफ लेकर जाती है, वो स्पिरिट जो है घमंड की स्पिरिट या वो मूव करती है, बार बार मूव करती है, वो उड़ती है, मैं उसे यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मैं उसे जो है दोबारा ना होने का या उठने का हुक्म करता हूँ। हालेलुया। जो कुछ आपकी जिंदगी में बार बार हो रहा है, आप दोबारा जो है उसको खुदा यीशु मसीह के नाम से रोकना शुरू करें। हालेलुया। मैं ये चाहता हूँ कि आप सब खड़े हों और यह थोड़ी देर के लिए उसकी वर्शिप करते हुए यह खुदा की सताइश करें। हालेलुया। Praise the Lord, praise the Lord। अपने हाथ उसकी तरफ बुलंद करें और उसकी प्रस्तुति करना शुरू करें, उसकी सताइश करना शुरू करें। आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, आपका बिहेवियर कैसा है, आप जो है अपने बिहेवियर या अपने एटीट्यूड में, अपनी कम्युनिकेशन में, आप अपने जो है चाल चलन में कैसे चल रहे हैं, आप जो है आपके हिडन मैटर्स कैसे हैं और आपके जो है जो ओपन जो है मैटर्स कैसे हैं। आप इन तमाम चीजों को देखना शुरू करें। वो कौन सी चीजें हैं जो बार बार आपकी जिंदगी के अंदर जो है रूनुमा हो रही है और वो कौन सी स्पिरिट्स हैं जो बार बार मूव कर रही हैं। आपको आज ही इसी वक्त और इसी लम्हे खुदा यीशु मसीह के नाम से आपको खुद रोकना होगा और फिर मैं भी आपकी मदद करूंगा। यीशु मसीह के नाम से आपके लिए दुआ करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथ बुलंद कीजिए और दुआ करना शुरू करें, उसकी प्रस्तुति करना शुरू करें, आवाज बुलंद करना शुरू करें उसके हुजूर में। दुश्मन की ताकतों को मालूम हो जाए, इब्लीस की कुव्वतों को मालूम हो जाए कि खुदावंद के लोग बेदार होशियार हैं। हालेलुया। और उसके रास्तों को आज यीशु मसीह के नाम से मजबूत कर दीजिए। हालेलुया। और खुदावंद के जो है वो एंजल्स मूव कर रहे हैं, खुदावंद के जो एंजल्स मूव कर रहे हैं और वो आपकी हेल्प के लिए आ चुके हैं ताकि आपकी मदद करें और उनके तमाम रास्तों को जो है वो रोक सके। जब आप यीशु मसीह के नाम का ईरान में इकरार करेंगे तो दुश्मन की कुव्वतें आपकी जिंदगी से जो है वो दोबारा जो है कभी भी नहीं आएंगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सब उसकी प्रस्तुति कर थोड़ी देर के लिए जो है इस्राएल में आइए, स्पिरिट के अंदर आइए, जय शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद तुझे खुद कहते हैं नेवर अगेन। मैं भी ये कहने के लिए तैयार हूँ, नेवर अगेन का नाम लगाना चाहता हूँ तेरे नाम से। तू मुझे कुव्वत दे, तेरे पाखरू की कुव्वत मुझे मिले, तेरे पाखरू का जोर मुझे मिले। हालेलुया। यीशु मसीह आपको पाखरू की कुव्वत से मबूर करना चाहता है इसी लम्हे, ताकि आप उसकी कुव्वत से और उसके जोर से जो है वो क्या कर सके, उसके रास्ते को बंद कर सके।
Praise the Lord. Worship you, Jesus Christ. Worship you, Jesus Christ. Worship you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. हर तरह से के नाम से अपनी तासीर में यीशु मसीह के नाम से never again never again never again ओ खुदा तेरा शुक्र है आज के कलाम के लिए तेरा शुक्र हमारी जिंदगी तेरे कलाम से शुरू किया है खुदा सब शाम की शुक्रगुजारी करें, सब उसकी सताइश करें, उसकी हम्द करें, ममनून हो जाए उसमें और शुक्रगुजारी करें कि अब मैं उसका रास्ता रोक सकता